بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے کے ساتھ میں ہوں طاہر عبید چودھری، میں ہوں صدف علی خان، اور کھیل خبروں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ 72 کھرب 94 ارب 90 کروڑ روپے کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش۔ جاری اخراجات کا تخمینہ 63 کھرب 45 ارب، ایف بی آر وصولیوں کا تخمینہ 49 کھرب 63 ارب، نان ٹیکس ریونیو 11 کھرب 9 ارب اور اعلیٰ تعلیم کے لیے 64 ارب روپے مختص۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر۔ بجٹ میں سرکاری شعبے کے مجموعی ترقیاتی پروگرام کے لیے 13 کھرب 24 ارب روپے رکھے گئے۔ وفاق کے لیے 6.5 کھرب اور صوبوں کے لیے 6 کھرب 74 ارب روپے مختص۔ زرعی شعبے کے لیے 10 ارب، ریلویز کے لیے 40 ارب، وفاقی حکومت کے ہسپتالوں کے لیے 13 ارب اور ای گورننس کے لیے 1 ارب روپے سے زائد مختص۔ احساس پروگرام کے لیے 208 ارب، کرونا سے نمٹنے کے لیے 70 ارب، تحفظ خوراک کے لیے 12 ارب، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب، نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 1.5 ارب اور کامیاب جوان پروگرام کے لیے 2 ارب روپے مختص۔ کیمیکل اور ربڑ سمیت 20,000 اشیاء ٹیکس سے مستثنی۔ مقامی صنعتوں کی ڈیوٹی 12 سے کم کر کے 6% کر دی گئی۔ سگریٹ، سگار اور تمباکو پر ٹیکس 65 سے بڑھا کر 100% کر دیا۔ شناختی کارڈ کے بغیر خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کرنے کی تجویز۔ بیرونی ترسیلات کو ایک بینک سے دوسرے میں منتقل کرنے پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ آٹو رکشا 200 cc موٹر سائیکل تک ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں ہوگا۔ اسکولوں کی سالانہ 2 لاکھ روپے فیس پر 100% ٹیکس کی تجویز۔ غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے حاصل منافع ٹیکس سے مستثنی قرار۔ سیمنٹ پر ٹیکس کی شرح 1 روپیہ 75 پیسے فی کلو ہوگی۔ ٹیکس سے متعلق مقدمات میں کمی کے لیے اقدامات۔ ای آڈٹ نظام متعارف کرانے کی تجویز۔ مہنگی اور لیز کی گاڑیوں پر ٹیکس کا نظام یکساں۔ ایف اے ٹی ایف کے تقاضوں کے پیش نظر مخصوص اداروں کی آمدن کو ٹیکس سے استثناء۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ پر نظر ثانی کو کمشنر سے اجازت سے مشروط کرنے کی تجویز۔ مقامی طور پر تیار کردہ موبائل فون پر ٹیکس کی شرح کم۔ مالی اہداف حاصل کرنے کے لیے اہم معاشی اصلاحات کی۔ جاری کھاتوں کے خسارے میں 73%، تجارتی خسارے میں 31% کمی لائی گئی۔ ایف بی آر کے ریونیو میں 17% اضافہ۔ ماضی کے بھاری قرضوں کی وجہ سے 5,000 ارب کا سود ادا کیا۔ اصلاحاتی پروگرام پر آئی ایم ایف کی 6 ارب ڈالر کی اضافی منظوری۔ کرونا کے باعث عوام کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج۔ کسانوں کو 15 ارب روپے کی چھوٹ۔ چھوٹے کاروباری افراد کے 3 ماہ کے بجلی بلوں کی ادائیگی حکومت نے اپنے ذمہ لی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو 70 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا۔ سستے گھروں کی فراہمی کے لیے 2 ود ہولڈنگ ٹیکس میں چھوٹ۔ این ایف سی ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی منظوری۔ بھارت 3 دہائیوں سے کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ طویل ترین لاک ڈاؤن نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی۔ نیو یارک ٹائمز نے کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا۔ کشمیری عوام حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا ٹویٹ۔ پاکستان میں کرونا کیسز کا گراف مزید بلند۔ ایک ہی دن میں ریکارڈ 6,397 نئے کیسز کی تصدیق۔ مزید 107 اموات، 40,247 صحتیاب۔
دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 76,72,000، 38,86,000 سے زائد شفایاب، 4,26,000 لقمہ اجل بن گئے۔ بھارت 3 لاکھ کیسز کے ساتھ دنیا کا چوتھا بدترین ملک بن گیا۔ امریکہ، برازیل، روس اور برطانیہ میں بھی وائرس کی شدت، بڑے پیمانے پر ہلاکتیں۔ چین میں صرف 65 افراد میں وائرس باقی۔ باون اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری، 11,730 ہیکٹر رقبے پر ادویات کا اسپرے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,52,000 ہیکٹر رقبے کا سروے۔ ناظرین، تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے مالی سال 2020-21 کے لیے 72,94,90 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ جی ڈی پی کی شرح نمو 2.1% پر لانے کا عزم، بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ سماجی تحفظ کے لیے 2,08 روپے مختص کیے گئے۔ صنعت، زراعت اور درآمدی شعبوں کے لیے خصوصی مراعات کا اعلان کیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں حسن طارق بٹ سے۔ وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن کا خاتمہ، سرکاری اداروں میں شفافیت، میرٹ کی بالادستی اور معیشت کی بحالی جمہوری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ معاشی بحران ورثے میں ملا۔ اس وقت ملکی قرض 5 سالوں میں دگنا ہو کر 31,000 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ روپے کی قدر کو غیر حقیقی اور مصنوعی طریقے سے بلند سطح پر رکھا، جس سے ایکسپورٹس میں کمی اور امپورٹس میں اضافہ ہوا۔ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں جاری کھاتوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 73% کم کیا گیا، جو 10 ارب ڈالر سے گھٹ کر 3 ارب ڈالر پر رہ گیا۔ تجارتی خسارے میں 31% کمی کی گئی، جو 21 ارب ڈالر سے کم ہو کر 15 ارب ڈالر رہ گیا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ کا خسارہ 5% سے کم ہو کر 3.8% رہ گیا۔ نان ٹیکس ریونیو میں 134% کا اضافہ ہوا۔ حماد اظہر نے کہا کہ اگلے بجٹ کا مقصد معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے ساتھ عوام کو کورونا وائرس کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ بیسک طبی خدمات، وبائی بیماریوں کی روک تھام، طبی آلات کی تیاری اور صحت کے اداروں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ کورونا کے علاج اور تدارک کے اقدامات کے علاوہ حکومت اپنی توجہ ہیلتھ سروسز کو بہتر بنانے کے لیے ICT سلوشنز کی طرف مصروف کر رہی ہے۔ تحفظ خوراک اور زراعت یعنی فوڈ سیکیورٹی کے فروغ کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر 12 ارب روپے کی رقم خرچ کی جائے گی۔ زرعی شعبے میں ریلیف پہنچانے کے لیے اور ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ رقم جو 50 ارب روپے اسٹیمولس پیکج میں زراعت کے لیے اور دوسرے پروجیکٹ زراعت کے جو وفاقی حکومت ہیں ان کے علاوہ ہے۔ حکومت نے سال 2020-21 کے دوران درج ذیل اہداف کے حصول کا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ جی ڈی پی گروتھ کو -0.4% سے بڑھا کر 2.1% پر لایا جائے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 4.4% تک محدود رکھا جائے گا۔ انفلیشن یعنی مہنگائی 9.1% سے کم کر کے 6.5% تک لائی جائے گی۔ بیرونی براہ راست سرمایہ کاری FDI میں 25% تک کا اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ میں سیاحت اور صنعتوں کی ترقی پر بھرپور توجہ دی گئی ہے اور خصوصی مراعات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بجٹ 2020-21 کاروبار کو ناکامی سے بچانے اور غریب عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا ہم ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں جسے ریلیف بجٹ کہا جا سکتا ہے، اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ ایکسپورٹ ریبیٹ کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایکسپورٹر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کرنے کو خودکار بنایا جا رہا ہے۔ یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف اشیاء مثلا کپڑے، سینیٹری ویئر، الیکٹروڈ، کمبلوں، پیڈ لاکس وغیرہ کو اسمگلنگ سے بچانے کے لیے ان پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کیا جائے۔ کورونا وائرس اور کینسر کی ڈائگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹ
परहेजी फूड यानी डाइटिक फूड की तमाम दरामदी मरहले पर तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सेस से मुस्तशना करार देने की तजवीज़ दी जा रही है। बच्चों और हमला खवातीन के लिए सप्लीमेंट्री फूड इस्तेमाल होने वाले खाम माल को कस्टम ड्यूटी से मुस्तशना करार देने की तजवीज़ पेश की जा रही है। हमाद अजहर ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद इंतजाम शुदा कबायली इलाकों, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तसर रकूम को बढ़ाया गया है। आइंदा माली साल का बजट कोरोना वायरस की वबा से मुतासरा मुल्क की मैशत में इक़्तिसादी सरगर्मियों को बहाल करने में मदद करेगा। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी शोबे के मजमूई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 13 खरब 24 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कोरोना वबा सूरत हाल के तनाजुर में खुसूसी इक़दाम के लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत माली साल 2020-21 में विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 650 अरब रुपए जबकि सूबों के लिए 674 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से माली बहरान को मद्देनजर रखते हुए मनसूबों की लागत में इजाफे से बचने के लिए जारी मनसूबों में 73% और नए मनसूबों के लिए 27% रकम मुख्तस की गई है। समाजी शोबे के मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। हुकूमत ने कोरोना और दीगर आफात की वजह से इंसानी जिंदगी पर पड़ने वाले मनफी असरात को ज़ाइल करने और मेयारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए खुसूसी तरक्याती प्रोग्राम वज़ा किया है, जिसके लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। PSDP में तालीम और पेशा वराना तरबियत के लिए 4 अरब 52 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आला तालीम और तामीराती शोबे के तरक्याती बजट में भी इजाफा किया गया है। HSC की एलोकेशन में जो 2019-20 में 60 अरब के करीब थी बढ़ाकर 64 अरब रुपए कर दी गई है। हुकूमत ने आवाम को कम कीमत पर मकामात फराहम करने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को 30 अरब रुपए फराहम किए हैं। मजीद ये कि अखुवत फाउंडेशन की कर्जा हसना स्कीम के जरिए कम लागत रहायशी मकानात की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कामयाब नौजवान प्रोग्राम नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा करने के लिए हुकूमत का खुसूसी प्रोग्राम है, जिसके लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मवासलात और कौमी शाहराहों के लिए 118 अरब 67 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सनती राब्तों, तजारत और कारोबार के फरोग के लिए NHA के तहत जारी मनसूबों की तकमील को तजदीद दी गई है। बिलखसूस CPEC के तहत मनसूबों को बशमूल मगरबी रूट के लिए वाफर वसाइल फराहम किए गए हैं। रेलवे के ML1 मनसूबा और दीगर मनसूबों के लिए 24 अरब रुपए रखे गए हैं। डैमों की तामीर और आबी वसाइल के लिए 182 अरब 96 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान पानी के शदीद बहरान का शिकार है। इस साल हुकूमत पानी से मुताल्लिक मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। ज़ियामीर बादशाह, मोहम्मद और दासलू जैम के लिए खातिर ख्वाह माली वसाइल फराहम किए गए हैं। इन मनसूबों से ज्यादा पानी जखीरा करने और बिजली की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ 30,000 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन 23 अरब और वजारत इत्तलात और नशरियात के लिए 36 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें PTV की डिजिटलाइजेशन के लिए 6 करोड़ और जदीद नशरियाती आलात के लिए 10 करोड़ रुपए शामिल हैं। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में जारी स्कीमों को तरजीह दी गई है ताकि इनकी बरवक्त तकमील से आवाम मुस्तफीद हो सकें। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आइंदा माली साल में टैक्स आमदन का हदफ 5,474 अरब रुपए रखा गया है, जिसमें FTR की वसूलियाँ 4,973 अरब जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,109 अरब होगा। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। आइंदा माली साल के बजट में मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए कई शोबों को टैक्सों की मद में छूट दी जा रही है, जबकि बगैर शनाख्ती कार्ड के खरीदारी की हद को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा। मुआशी तरक्की की दरामद की बुनियाद पर इन्हिसार अब अंदरूनी जराये से हासिल करदा आमदन की तरक्की पर तब्दील हो गया है। तारीखी रिफंड अदा किए गए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 119% से भी ज्यादा हैं। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाकर 6,616 रिटेल आउटलेट्स, जिसे इस साल दिसंबर तक इंशाल्लाह 15,000 तक ले जाने की कोशिश है। पॉइंट ऑफ सेल पर सेल्स टैक्स की शरह 14% से मजीद कम करके 12% करने की तजवीज़ दी। होटल की सनत बहुत मुतासर हुई है। हमने इस सनत पर मिनिमम टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.5% करने की तजवीज़ दी है। ये छूट अप्रैल से सितंबर तक यानी 6 माह तक दी जाएगी। मुआशी सरगर्मियों में तेजी के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों समेत तामीरात और अशिया साजी की सनत को मराद दी गई है। डोमेस्टिक टैक्स कलेक्शन में पहले 9 माह में हुकूमत के 27% का इजाफा हुआ। छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों के लिए एक फिक्स्ड मराद का पैकेज मुतारिफ करवाया गया है।
اس کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی پیکج بھی متعارف کروایا گیا۔ صنعتی شعبے کی لگائی جانے والی لاگت کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ خام مال بھی مکمل طور پر کسٹم ڈیوٹیوں سے مستثنی قرار دے دیا جائے۔ ان اشیاء کی فہرست میں کیمیکلز، لیدر، ٹیکسٹائل، ربڑ، کھاد میں استعمال ہونے والے خام مال شامل ہیں۔ ان ٹیرف لائنوں میں تقریباً 20,000 اشیاء شامل ہیں جو کل درآمدات کا 20% ہیں، جن پر کسٹم ڈیوٹی کو بالکل 0% کیا جا رہا ہے۔ مقامی انجینئرنگ کے شعبے کو حوصلہ افزائی کے لیے ہاٹ رولڈ کوئلز پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو 12.5% سے کم کر کے 6% پر لانے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ اگلے بجٹ میں ترقیاتی وسائل میں اضافے کے لیے سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو 100%، جبکہ انرجی ڈرنکس پر FED کو 25% کیا جا رہا ہے۔ بجٹ میں عوام کو اضافی بوجھ سے بچانے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی کے لیے درکار وسائل کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی منظوری دی گئی۔ حکومت کا معاشی ٹیم نے کابینہ ارکان کو بجٹ کے اہم نکات سے آگاہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت کی معاشی ٹیم نے اجلاس کو بجٹ کے حوالے سے بریفنگ دی۔ آئندہ مالی سال کے فائنانس بل کی کاپی سینٹ میں بھی پیش کر دی گئی۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے فائنانس بل ایوان بالا میں پیش کیا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین ساجد سنجرانی نے کی۔ قومی اسمبلی کے بعد ایوان بالا میں معمول کی کارروائی روک کر بجٹ کی کاپی اور دستاویزات پیش کی گئیں۔ چیئرمین نے ہدایت کی کہ ارکان فائنانس بل پر 7 روز میں سفارشات خزانے کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو پیش کریں۔ قائمہ کمیٹی 10 دن میں رپورٹ ایوان میں پیش کرے گی، جسے قومی اسمبلی کو بھجوا دیا جائے گا۔ حماد اظہر نے ایوان بالا کو یقین دلایا کہ سینٹ کی سفارشات کو بجٹ کی حتمی دستاویزات میں شامل کیا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے مالیاتی ادارے محفوظ تفصیلات ترمیمی آرڈیننس 2020 ایوان میں پیش کیا۔ وزیر اطلاعات نے ساتھ میں NFC ایوارڈ کے عمل درآمد پر نگرانی کی پہلی اور دوسری ششماہی کی رپورٹیں بھی ایوان میں پیش کیں۔ تربت میں خاتون کے قتل اور بچی کو زخمی کرنے پر اپوزیشن نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ سینٹ اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ کشمیری عوام حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ضرور کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اپنے ٹویٹ میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بھارت گزشتہ 3 دہائیوں سے کشمیر کے نہتے لوگوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے طویل ترین لاک ڈاؤن جاری ہے۔ فوجی محاصرے اور بندشوں کی وجہ سے شہریوں کو تکالیف کا سامنا ہے۔ صدر مملکت نے اپنے ٹویٹ میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق نیو یارک ٹائمز کے تصویری خاکوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تصویری خاکوں میں بھارتی مظالم اور لاک ڈاؤن سے پیش آنے والی صورتحال کی عکاسی کی گئی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ کورونا وبا کے باوجود کشمیر میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی بندش جاری ہے اور بھارتی اقدامات کے باعث لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے وزیر اعظم کے بیان سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کے منفی رویے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کورونا سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے خیر سگالی کے طور پر پاکستانی تجربات کے تبادلے پر بھارتی منفی رویہ افسوسناک ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان کورونا کی وجہ سے بر صغیر کے کروڑوں غریب عوام کو درپیش مسائل پر غیر پیشہ ورانہ رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی تجویز معروف امریکی یونیورسٹی کی تحقیق کی روشنی میں تھی۔ حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ کورونا کی عالمی وبا مشترکہ چیلنج ہے جو پوائنٹ سکورنگ کی بجائے سنجیدہ کوششوں کے ساتھ بہترین قومی تجربات کے تبادلے کا تقاضا کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سیرین حریت رہنما بلال غنی لون نے میر باعث عمر فاروق کی مسلسل 10 ماہ سے گھر میں جاری نظر بندی کی شدید مذمت کی ہے۔
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर से एक बयान में बिलाल गनीलोन ने कहा कि नगैन में मियां मीर वाइज की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस तैनात है और उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि इजहार राय की आज़ादी बुनियादी इंसानी हक है। सियासी नजरियात की बुनियाद पर हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को पाबंद सलासल करना गैर इंसानी अमल है। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो रियासती अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करे। तहरीक वहदत इस्लामी ने बांदीपुरा में अपने इजलास में भारत की जानिब से हक खुद इरादियत का मुतालबा करने वाले रियासती अवाम को इंतकाम का निशाना बनाने पर अफसोस का इजहार किया। जम्मू कश्मीर सोशल पीस फोरम के चेयरमैन एडवोकेट देवेंद्र सिंह बहल की क़यादत में वक्त शहीद नौजवान और गैर कानूनी तौर पर नजरबंद रहनुमा शकील अहमद के अहल खाना के साथ इजहार यकजहती के लिए शुपैया गया। गुलाम मोहम्मद खान सोपोरी और मोहम्मद यूसुफ नकाश ने 9 उम्र तालिब इल्म तुफैल मतो को उनकी शहादत की बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। हुर्रियत रहनुमा जावेद अहमद मीर ने कहा कि कश्मीरी अवाम गुज़श्ता 7 दहाइयों से हक खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में बेमिसाल कुर्बानियां दे रहे हैं। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भारत मुखालिफ मुज़ाहिरा किया गया। मुज़ाहिरे का एहतमाम कोरोना वायरस की आड़ में लॉकडाउन के दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और भारतीय फौजियों की जानिब से कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग के खिलाफ किया गया था। मुज़ाहिरीन से खिताब करते हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात शेख अब्दुल मतीन ने कहा कि भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में कोरोना लॉकडाउन के नाम पर रियासती दहशतगर्दी तेज कर दी है और भारतीय फौजी मकबूजा इलाके में जाली मुकाबलों में बेगुनाह नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। मीरवाइज की सरपरस्ती में कायम हुर्रियत फोरम की आज़ाद कश्मीर शाख के कन्वीनर सैयद फैज नक्शबंदी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत कोरोना की आड़ में कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। उन्होंने नजरबंद कायदीन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि कोरोना वबा और आलमी मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को हकीकत पसंदाना और अवामी हमदर्दी का आईनादार बजट दिया है। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि नए टैक्सों का बोझ न डालकर आवाम को रिलीफ दिया गया है। हुकूमत ने बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे के लिए भी खतीर रकम मुख्तस की है। वफाकी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट के बारे में अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, आइए देखते हैं। कोई नया टैक्स नहीं डाला जाएगा और बिजनेसमैनों के लिए पाकिस्तान में जितने भी सरमायाकार हैं उनके लिए तमाम जितना कोशिश करते कि टैक्सों को कम किया है, यानी हुकूमत लोगों से बोझ उठा के अपने पे डाल रही है। लो इनकम के लोग और छोटे छोटे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उन बिजनेसेस को इफेक्टिवली फायदा पहुंचाने के लिए इनको इकदामात लाने चाहिए। सबसे ज्यादा सोशल सेक्टर को फोकियत दी गई है, अवाम को फोकियत दी गई है, अवाम के लिए प्लान तैयार किए गए हैं, अवाम को रिलीफ देने के प्लान तरतीब दिए गए हैं। स्मॉल बिजनेसेस को भी और तमाम टैक्स ब्रैकेट को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है ताकि लोगों के लिए मुश्किलात कम हो और बेहतर तौर पे इस मुश्किल से हम निकल पाएं। इस मुश्किल हालात में जो सोशल हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं लोगों के सोशल प्रोटेक्शन के लिए उनको भी यकीनी रखा गया, तो ये सबसे अहम है उस तबके के लिए जो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है इस माशी सूरत हाल में। सबसे बड़ी बात है कि किसी किस्म का कोई टैक्स अवाम पर नहीं लगाया गया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आप अवाम को इतने मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ दे रहे हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर फोर्स है, दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर पे हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान की और भी जो डोमेस्टिक काम लाइक फॉर इंस्टेंस कॉटेज इंडस्ट्री यानी से ये करेगी, बिकॉज एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान का बैकबोन है। विफाक ऐवान हाय सनअत व तिजारत ने आइंदा माली साल के बजट को मुतवाज़न करार देते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में विफाकी हुकूमत ने अच्छी कोशिश की है। तफसीलात मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। विफाक ऐवान हाय सनअत व तिजारत ने बजट इजलास को बराह रास्त देखने के लिए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट चैम्बर्स में इजलास मुनक्किद किए और मौजूदा दौर में इंटरनेट टेक्नोलॉजी के तहत तमाम मराकिज से फीडबैक भी हासिल किया। बजट इजलास के बाद सनतकारों ने PTV से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में टैक्स फ्री बजट देकर काफी हद तक सनतकारों की न सिर्फ मुश्किलात कम की हैं बल्कि इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए भी मौजूदा टैक्सों में कमी की है, जो कि खुश आइंद है। हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि इस बजट को
हल्का रखा जाए, इसमें कोई नया टैक्स न लगाया जाए। हमें बेहद खुशी है कि हुकूमत ने हमारे मुतालबे को मानते हुए कोई नया टैक्स इस बजट में नहीं लगाया है। इन हालात में मेरा ख्याल है इससे बेहतर नहीं आ सकता था, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट ने हमसे कहा है कि अगर कोई बात आपकी रह जाए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी मुल्क के लिए। सनतकारों ने कहा कि तामीरात, रियल सेक्टर समेत नए इक़्तिसादी जोन की तश्कील और सरमायाकार दोस्त इक़दामात मुश्किल हालात में हुकूमत का दानिशमंदाना फैसला है और इसके खातिर खा नताइज सामने आएंगे। इट इज़ अ वेरी बैलेंस बजट, काफ़ी चीज़ें कम की हैं, आसानियाँ दी हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस हालात में करना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ इनकम टैक्स में जो विद होल्डिंग उन्होंने इक्वल कर दिया इंडस्ट्री को, लीकेज बंद होगी। जो डिस्प्यूटेड मैटर्स है उसमें वो ADRC वाला मामला ठीक कर दिया है, जो अपनी प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। आई थिंक इस हालात में आई पर्सनली ऑनेस्टली थिंक इट इज़ क्वाइट गुड इफेक्ट। विफाक ईवान हाई सनत और तिजारत ने बजट में टैक्स जमा कराने के खुदकार निज़ाम को वज़ा करने, कस्टम और टैक्स हुक्काम की दखल अंदाजी को कम से कम करने को तिजारत समेत आमदनी बढ़ाने के लिए भी मस्बत कदम करार दिया। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। ताजिर बिरादरी ने आइंदा माली साल के बजट को कारोबार दोस्त करार देते हुए कहा है कि कोरोना से मुतासरा मुल्क की मईशत की बहाली के सिलसिले में ये एक अहम संगी मील साबित होगा। अब रेवेन्यू जनरेशन तो आबकारी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ सोचा जाए। टेक्सटाइल वगैरह अब तो ठीक है, एक्सपोर्ट आपकी हो रही है, लेकिन अब आप फूड आइटम एक्सपोर्ट, हलाल फूड इंडस्ट्री जो है आपकी $1 ट्रिलियन की ग्लोबल ट्रेड है, पाकिस्तान को उसको मैप पे लेके आए। बड़ा मुनासिब बजट लग रहा है। ये एक डेफिसिट बजट है और इस पे इन्होंने टैक्स भी कोई ज्यादा नहीं लगाए। टैक्स नेट हमारे मुल्क में बढ़ना चाहिए। बड़ी तेजी के साथ कोरोना भी फैल रहा है। मैं समझता हूँ कि इन हालात में गवर्नमेंट के लिए मुश्किल था कि इस बजट को पूरा तरह से कर सकना। मौजूदा हालात में एक मतवाज़िन बजट है। बजट माशाल्लाह से इस वक्त हुकूमत ने जो है अवाम दोस्त बजट पेश किया है, जिससे हम बहुत मुतमईन हैं। कोरोना की वजह से वैसे ही बहुत बदहालती अवाम। इमरान खान जो है अपनी गरीब अवाम के लिए सब कुछ कर रहा है और इसने जो बजट में तो कोई नया टैक्स लगाया नहीं है। तो शायद बात यह है कि हुकूमत इस दफा जो है वो मजीद कोई टैक्सेस नहीं लगा रहे। जो हमारी प्रोडक्शन लाइन है इस टाइम उसको जो सस्ता गैस और बिजली मिल रहा है तो उसके तहत उसको आम कंज्यूमर को, आम आदमी के लिए उसकी आसानियां पैदा करनी चाहिए, ऐसे रेट्स दिए जाएं ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट का फायदा इनको भी मिले। इंशाल्लाह इस बजट से खान साहब से हमारी ज्यादा तवक्को है कि बलूचिस्तान के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा बजट पेश कर लेते हैं ना, तो उम्मीद हमारे बलूचिस्तान क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ज्यादा है इंशाल्लाह। यकीनन इस बजट में ताजरों के लिए, आवाम के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए बेहतरी नजर आएगी। फाइलर्स हैं उनको बहुत फायदा होगा, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस होनी भी जरूरी है। हम लोगों का अवेयरनेस नहीं है इस चीज की। ओवरऑल काम तो बेहतर हो रहा है, उसमें टाइम लगेगा, लाजमी बात है। जो पुरानी गवर्नमेंट है उन्होंने जो किया हुआ है उसके बाद जो लाजमी बात है उसको कवर अप करने के लिए तो इमरान खान काम कर रहा है। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए हर तरह से। नाज़रीन, कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर डालते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ तेजी से बुलंद होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 6,397 नए केस रजिस्टर किए गए, जबकि मजीद 107 अफराद मौत की वादी में उतर गए। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 83,223 है, जबकि मुतासर होने वाले 1,25,933 अफराद में से 40,247 सेहतियाब होकर जिंदगी की रौनकों की जानिब लौट चुके हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ नबरदाज़मा डॉक्टरों और तिबी अमले के लिए इस खुसूसी पैकेज पर विफाकी और सूबाई हुकूमतें अमल दरामद करवाएंगी। तफसीलात रिजवान आरिफ से। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में खुसूसी पैकेज की तफसील बताते हुए मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि फ्रंट लाइन वर्कर का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मुआवनत अहम तरजीह है। मुश्किल हालात में जिम्मेदारी अदा करने वाले हमारे हीरो हैं। हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके लिए हम टैक्सेस की सूरत में कुछ सहूलियात उनको देंगे। अगर कोई हेल्थ वर्कर खुद अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो उसके लिए एक हमने शुहदा पैकेज वफाकी सतह पे अनाउंस किया। हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की सिक्योरिटी और उनका तहफ़्फ़ुज़ जो कि बहुत बड़ी तरजीह है हमारी। 1166 जो हमारी हेल्पलाइन है
اس کو اب ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں اگر ان کا کوئی ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہو تو اس حوالے سے سپورٹ دینے کا بندوبست کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ حکومت کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے نجی شعبے کی اہمیت سے آگاہ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ری فائنینسنگ فیسلٹی شروع کر رکھی ہے کہ جس کے تحت وہ پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر یا پرائیویٹ ہاسپٹلس کے جو اونرز ہیں ان کو بہت رعایتی بنیادوں کے اوپر قرضے فراہم کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے بینکس جو ہیں وہ مزید رعایتی بنیادوں کے اوپر یہ قرضے فراہم کر سکیں۔ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز جو ہیں وہ اگر کرٹیکل کیئر کے حوالے سے کوئی ایکوپمنٹس یا مشینری امپورٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم ٹیکسز کے اندر رعایت دیں گے۔ معاون خصوصی صحت نے کہا کہ ہیلتھ ورکرز کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ چین کے تعاون سے 5000 ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے NCOC میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ وزیر اعظم نے صوبوں پر واضح کیا ہے کہ حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرائیں۔ احتیاط ہی کورونا کا واحد علاج ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس چیز کا بڑا سختی سے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے بھی سارے پروونسز کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو SOPs بنائی ہوئی ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو ہم اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بچوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ صرف لا انفورسنگ ایجنسی کا یا حکومت کا کام نہیں ہے، سب اکٹھے ہو کے اس بیماری کو ہم اس کا مقابلہ کریں۔ پاکستان روس کے قومی دن کے موقع پر روسی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اہم شراکت دار ہونے کے ناطے پاکستان روس کے ساتھ تمام شعبوں میں طویل مدتی اور کثیر الجہتی شراکت داری کے لیے کام جاری رکھے گا۔ دنیا بھر میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 33,59,000 ہے۔ 213 ممالک اور آزاد خطوں میں کورونا سے متاثر ہونے والے 76,72,000 متاثرہ افراد میں سے 38,86,000 افراد صحت یاب ہو کر زندگی کی رونقوں کی جانب لوٹ چکے ہیں، جبکہ 4,26,000 لقمہ اجل بن گئے۔ بھارت جہاں انتہا پسند ہندو حکومتوں کی ساری توجہ مسلمانوں سمیت دوسری اقلیتوں کو کچلنے پر مرکوز ہے، وہاں کورونا وائرس بڑے پیمانے پر تباہی مچا رہا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں۔ مجموعی طور پر 3,09,000 کیسز کے ساتھ بھارت دنیا کا چوتھا بدترین بیمار ملک بن چکا ہے۔ امریکہ، برازیل، روس اور برطانیہ میں بھی وائرس سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ چین جہاں سے کورونا نے سر اٹھایا تھا، اب صرف 65 افراد میں وائرس باقی رہ گیا۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی۔ بینچ کے رکن جسٹس مقبول باقر نے وفاق کے وکیل پر یہ واضح کیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جج کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ سب قانون کے مطابق ہوگا۔ متعلقہ جج سے جائیدادیں خریدنے کے ذرائع کے بارے میں اس وقت استفسار کیا جا سکتا ہے جب ثابت ہو جائے کہ جائیدادیں جج کی آمدن سے خریدی گئیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ٹیکس گوشوارے جمع کراتی ہیں تو وہ پھر خود کو کیوں خود کفیل نہیں ہو سکتی ہیں۔ وفاق کے وکیل بیرسٹر فروخ نسیم نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ٹیکس قانون ریفرنس کے نکات میں سے ایک نقطہ ہے، کسی جج سے جائیدادوں کا پوچھنے کے لیے مناسب فورم سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ وفاق کے وکیل آئندہ سماعت پر اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔
नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर ने टिड्डी दल के मुमकिन हमले के पेश नजर सूबों के जारी ऑपरेशन, उनसे हासिल करना नताइज, मुमकिन खतरात के हवाले से तैयारियों और मजीद दरकार वसाइल का जायजा लिया। रावलपिंडी में नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल मौजम एजाज की सरबराही में होने वाले इजलास में टिड्डी दल के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद तेज करने के लिए 2 और हवाई जहाज लीज पर हासिल करने का फैसला किया गया। नेशनल कोऑर्डिनेटर ने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और फौज की 1500 मुश्तरका टीमें मुल्क के 52 अजला के मुतासरा इलाकों में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। टिड्डी दल के मौसर तदारुक के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से स्प्रे भी किया जा रहा है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 6 करोड़ 80 लाख एकड़ रकबे पर सर्वे किया जा चुका है, जबकि 14.5 लाख एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब के 2, सिंध के 6, खैबर पख्तूनख्वा के 11 और बलूचिस्तान के 33 अजला में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में खुसूसी टीमों की कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 11,231 खिलाफ वर्जियां नोट की गईं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 1325 मार्केट्स और दुकानों जबकि 17 सनतों को जुर्माने या सील किया गया। 1437 गाड़ियों को एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग दी गई या बंद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम करने का फैसला किया है। तफसीलात शाहिद वफा से। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान लाहौर में एसओपीज की पाबंदियां 2 हफ्ते के लिए सख्त करने की सिफारिशात वफाक को भेजने का फैसला किया गया। इजलास के दौरान कारोबारी मुकामात और बाजारों में एसओपीज पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार किया गया। वजीर आला को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि अवामी मुकामात पर समाजी फासले और मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल न होने से कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने भी मुलाकात की। मुलाकात में बजट सेशन के दौरान अरकान असेंबली को कोरोना से महफूज रखने के लिए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया गया। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी लाहौर में इजलास हुआ, जिसकी सदारत वजीर आला उस्मान बुज़दार ने की। इजलास के दौरान बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ की फराहमी हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर हाउस लाहौर में सूबाई वजीर मियां महमूदुर रशीद ने गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वबा से बचाव के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। सूबाई वजीर इतलात फयाजुल हसन चौहान ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना की वबा के तदारुक के साथ साथ मईशत को दरपेश मसाइल के अजाले के लिए भी कोशां है। तो जो मार्केटें, दुकानें, ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो गाड़ियां थीं, अगर वो एसओपीज की वायलेशन कर रही थी तो 6,545 केसेस हैं, उनके ऊपर 44 लाख रुपए के जो जुर्माने किए गए हैं। दूसरा, तकरीबन 1,478 मार्केटें हैं कि जिन्होंने पंजाब हुकूमत के जो एसओपीज थे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से उनको वायलेट किया, तो उन मार्केटों को जो है वो बंद किया गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुकदमात का सामना करने की बजाय बीमारियों के पीछे छुप रही है। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की सिंध में कोरोना के अदम फैलाव के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल करने पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से मुतल्लिका अस्पताल मोरोफील्ड आइसोलेशन सेंटर के लिए हिफाजती साजो सामान का अतिया दिया गया। तफसील जानते हैं जीशान अहमद से। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,356 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। कोरोना के हवाले से अपने बयान में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि आज 1,066 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को चले गए हैं।
अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 23,113 हो गई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सदारत में आला सतह इजलास हुआ। इजलास में वफाकी फंडिंग से कराची में जारी तरक्याती मंसूबों पर गौर किया गया। इजलास में SIDCL के मेंबरान ने भी शिरकत की। SIDCL की जानिब से इजलास को मंगोपीर रोड की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने ताल्लुका अस्पताल मोरो जिला नौशेरा फिरोज के तिब्बी अमले के एहतजाज का नोटिस लेते हुए उन्हें कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती साजो सामान दिया। इस सामान में 1500 हिफाजती किट्स, 1000 फेस मास्क और 2 कार्टन हैंड सैनिटाइजर्स के शामिल हैं। गवर्नर सिंध की हिदायत पर सूबे के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों को पहले ही हिफाजती साजो सामान और हैंड सैनिटाइजर्स फराहम किए जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध में सेहत का शोबा ज़बू हाली का शिकार है। बद इंतजामी सिंध हुकूमत की, सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट की और नायली उरूज पर है। दूसरी जानिब वजीर साहबा और वजीर आला साहब लड़ किस बात पे रहे हैं कि सदारती अवार्ड इस कोरोना में काम करने पे सदारती अवार्ड किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए। दूसरी जानिब सिंध ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से सूबाई हुकूमत की तरफ से रिस्क अलाउंस में तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को शामिल न किए जाने पर सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने स्याह पट्टी बांधकर एहतजाज किया और मुख्तसर वक्त के लिए OPDs भी बंद कर दी। इस मौके पर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद नंबर 10 पर एहतजाज करने वाले डॉक्टरों का कहना था कि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं और सरकार तमाम डॉक्टरों को हेल्थ रिस्क अलाउंस और मुकम्मल किट्स फराहम करे। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा है कि सूबे के मुख्तलिफ अजला के बुनियादी मराकिज़ सेहत में PPHI का टेलीमेडिसिन पायलट प्रोजेक्ट का आगाज अहसन इक़दाम है। अपने ट्वीट में वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत मजीद अजला को मवासलाती राब्ते से मुंसलिक करके इस मंसूबे को मजीद वुसअत दी गई और इस मंसूबे से टेलीमेडिसिन के जरिए सूबे के दूर दराज इलाकों में इलाज मुआलजे की सहूलत दस्तयाब होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने रीजी मॉडल टाउन में सहूलियात की फराहमी के कामों में पेशरफ्त पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए तमाम मुतल्लिका महकमों को 10 रोज में लाहे अमल तरतीब देने की हिदायत की है। पेशावर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने रेजी मॉडल टाउन में सिक्योरिटी इंतजामात की बेहतरी, बिजली की फराहमी के लिए ग्रिड स्टेशन की तामीर और ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के फैलाव में मजीद तेजी आ गई है, जिसके बाद दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एक मरतबा फिर लॉकडाउन कर दिया गया। तफसीलात अदील अहमद खान से। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर में अब कोरोना मरीजों की कुल तादाद 574 हो गई है। नए केसेस में से 25 का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। 242 अफराद सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं, जबकि 321 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। एक मरतबा फिर मुजफ्फराबाद शहर में एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। अशियाए खुरोनोश के अलावा तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हर किस्म की ट्रैफिक की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रावलपिंडी के इलाके सदर में बिजली के खंभे में नस बारूदी मवाद फटने से एक शख्स जाँबहक और 10 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बम धमाके में जाँबहक होने वाले शख्स की शनाख्त आरिफीन के नाम से हुई, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सूबाई वजीर कानून बशारत राजा ने बम धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए IG पंजाब से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। राजा बशारत ने अफसोसनाक वाक़े में शहीद होने वाले रेडी बांध के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 21 जून को सूरज ग्रहण होगा। इस दौरान चांद मुकम्मल तौर पर सूरज के सामने आ जाएगा, तहम सूरज एक आतिशी दायरे की शक्ल में नजर आएगा, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में ये मंजर सक्खर और कुर्ब जवार में देखा जा सकेगा, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक सुबह 8:46 पर शुरू होगा, जबकि दोपहर 2:34 पर खत्म होगा। नुक्ता उरूज दिन 11:40 पर होगा। पाकिस्तान के अलावा सूरज ग्रहण भारत, चीन और अफ्रीकी ममालिक में भी देखा जा सकेगा।
महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमेशा सर खेलों में सबसे पहले आपको बताएं, दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। अजहर अली कौमी टेस्ट जबकि बाबर आजम T20 टीम की कप्तानी करेंगे। हैदर अली और काशिफ भट्टी डेब्यू करेंगे जबकि सुहेल खान की स्क्वाड में वापसी हुई है। हारिस सुहेल के अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तमाम खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया है। खिलाड़ियों के 20 और 25 जून को कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में इंग्लैंड में खेली जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाह हक का कहना है कि सिलेक्टर्स ने एक ऐसे स्क्वाड का इंतखाब किया है जिससे इंग्लैंड में तवील और महदूद दोनों तर्ज की क्रिकेट में बेहतर कारकर्दगी की तवक्को है। उन्होंने कहा कि काफी अरसे से खिलाड़ियों के मैदान से दूरी एक चैलेंज है, ताहम उम्मीद है कि इंग्लैंड में एक माह के दौरान भरपूर ट्रेनिंग के बायस मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मिसबाह हक ने कहा कि नौजवान क्रिकेटर्स यूनुस खान और मुश्ताक अहमद के वसी तजुर्बे से मुस्तफीद होंगे। यूरोपियन फुटबॉल लीग्स में जर्मन लीग के बाद स्पेनिश लीग की भी वापसी हो गई है। 3 माह के वक्फे के बाद ला लीगा के दिलचस्प मुकाबलों का आगाज हो गया। सेविला ने रियल बेटिस को हरा दिया। सेविले में बंद दरवाजों के पीछे खेले गए मैच में मेजबान टीम ने रिवायती हरीफ रियल बेटिस को 2 गोल से शिकस्त दी। मेहमान टीम गोल करने में नाकाम रही। दोनों टीमों के दरमियान खेल का पहला हाफ गोल से खाली रहा, ताहम दूसरे हाफ में सेविला ने जारहाना खेल पेश करते हुए 6 मिनट के वक्फे से 2 गोल करके फतह अपने नाम की। शायकीन तमाम हिफाजती तदाबीर को नजरअंदाज करते हुए स्टेडियम के बाहर पहुंच गए। तमाम स्टेडियम में सिर्फ वर्चुअल फैंस ही जगह बना सके। इटली में कोपा इटालिया फुटबॉल कप के दूसरे मरहले का भी आगाज होने वाला है। इवेंट के दूसरे मरहले में सेमीफाइनल्स मुकाबले होंगे जिसके लिए यूवेंटस और AC मिलान की टीमें भरपूर तैयारी कर रही हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से 3 माह के वक्फे के बाद दोनों टीमों के दरमियान होने वाला ये इटली का पहला प्रोफेशनल मैच होगा। दोनों टीमें कल ट्यूरन के यूवेंटस एलियांज स्टेडियम में मद्देमुकाबिल होंगी। दूसरा सेमीफाइनल नापोली और इंटर मिलान के दरमियान खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग भी वापसी के लिए पारतोल रही है। खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को स्टेडियम में मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीमियर लीग इंतजामिया ने लीग के इनेकाद के सिलसिले में मनसूबाबंदी कर ली है। मैचेस के दौरान कोई मास्क होगा और न ही कोई बॉल बॉय। खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ को भी स्टेडियम में मास्क पहनने की जरूरत नहीं होगी। लीग का पहला मैच 17 जून को ऑस्टन विला और शेफील्ड यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। प्रीमियर लीग क्लब टॉटनहम हॉटस्पर के मिडफील्डर डेली अली को एक मैच की पाबंदी का सामना करना पड़ गया। फुटबॉल एसोसिएशन ने डेली अली को कोरोना वायरस के हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से मुअत्तल किया है। 24 साल अली ने सोशल मीडिया पर जारी की गई वीडियो में आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से एशियाई आदमी का मजाक उड़ाया था। डेली अली को 50,000 पाउंड के जुर्माने के साथ साथ तरबियती कोर्स लेने की भी हिदायत कर दी गई है। कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद जहां मुख्तलिफ ममालिक में बंद दरवाजों के पीछे बगैर तमाशाइयों के खेलों के मुकाबले जारी हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में अब तमाशाई स्टेडियम्स जाकर मैच देख सकेंगे। कैनबरा में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि 40,000 गुंजाइश वाले स्टेडियम्स में 10,000 तक शायकीन मैच देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि नया कानून कॉन्सर्ट्स, मेले और त्योहारों पर भी लागू होगा। अमेरिका में खेलों की सरगर्मियां बहाल होने लगी। कोरोना लॉकडाउन के 3 महीने बाद टेक्सास में गोल्फ मुकाबलों का आगाज हो गया। चैंपियनशिप के पहले मरहले में बरतानिया के जस्टिन रोज और अमरीकी खिलाड़ी हैरल्ड वार्नर ने 7 अंडर पार 63 के साथ बर्तरी हासिल कर ली। तमाम खिलाड़ियों ने कोरोना टेस्ट के बाद इवेंट में शिरकत की। कोरोना वायरस की वजह से फार्मूला 1 ने मजीद 3 रेसेस न करने का फैसला किया है। सिंगापुर, अजरबैजान और जापान ग्रां प्री मंसूख कर दी गई है।
فارمولا 1 منتظمین کے مطابق سیزن کو 15 سے 18 ریسز تک محدود کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ فارمولا 1 کی اب تک 4 ریسز منسوخ ہو چکی ہیں، تاہم یورپ میں نئے شیڈول کے مطابق ریسز کا آغاز 5 جولائی سے ہوگا۔ ڈاکار ریلی 2021 کے روٹس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والی دوسری ریس میں نئے روٹس متعارف کروائے جائیں گے۔ ریس جدہ سے شروع ہو کر جدہ میں ہی اختتام پذیر ہوگی۔ ریس کا یہ 43واں ایڈیشن ہے جو اگلے سال 3 سے 15 جنوری تک جاری رہے گا۔ کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین نیٹ کی طرف۔ بہت بہت شکریہ انیس، اور اسی کے ساتھ ہی بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اپنی جان اور جند ہے یاروں، یہ منموہنا سندھ ہے یاروں۔ پورے پاکستان کے بابا قائد بابا اس بستی میں ہی سوتے ہیں۔ ہنستے بستے روشنیوں کے شہر کے سائے دور بحیرہ عرب کے ساحل پر دکھتے ہیں۔ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، اس دھرتی کی بنیادوں میں عشق رچا ہے۔ ریتوں اور رواجوں کا گہرا ساگر ہے اور قدیمی تہذیبوں کا ایک مرکز ہے۔ سندھو سائیں دریا کم ہے، عشق زیادہ، مست مچھیروں کی اکلوتی جان یہی ہے، پیارے ماہی گیروں کی پہچان یہی ہے۔ نیلا گہرا عشق سمندر، ہر دل بولے مست قلندر، شام سے پہلے 4 چراغ یہیں چلتے ہیں، سہون کے درویش ہمیشہ رقص کے عالم میں ملتے ہیں۔ پیار اور امن کی راہ دکھانے ایک سچل سرمست بھی آئے اور بھٹائی نے بھی ایک قندیل جلائی، جس کی لو سے آج بھی پائیں لوگ دعائیں۔ جن کے تنبورے کے سر ہیں لہو کی صورت بدن میں روشن، منچر جھیل کی نیلی دنیا جس میں بیڑیاں اور مہانے دل دریا سے گہرے پانی میں بستے ہیں۔ رانی کوٹ کی میلوں لمبی یہ دیواریں جن کی باہوں میں محفوظ ہیں صدیوں کے میٹھے افسانے۔ پاس ہی کچھ البیلی سکھیاں کھیت سے پھول کپاس کے چن کر ایک لباس کا ٹکڑا بن کر رنگ برنگے دھاگوں سے پھر کیسے کیسے نقش بنائیں۔ تھر کا صحرا گیتوں اور ریتوں کی بستی، رنگوں اور سروں کی دھرتی، جوگیوں اور سپیروں کی ایک جادو نگری۔ ریت کا ساگر جس کی دھوپ میں جگمگ موروں کے پر چمکے، رنگ برنگی پگڑی والوں کے گھر چمکے۔ اس کی ریت کا ذرہ ذرہ عشق بھرا ہے، عشق ہی یاروں اس وادی مہران کا دل ہے، اور یہ خطہ
पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। गरीब, मिस्त्री, मजदूर, राज और तरखान, इन्हीं के दम से है तामीर मुल्क पाकिस्तान। ये लोग ढूंढते हैं आबुदाना रोजाना, कि रोज काम मिले तो नसीब हो खाना। सफेद पोश हैं, मेहनत को रोजो शब तैयार, किसी से भीख नहीं मांगते ये सब खुददार। कोई हरीज जो कर ले ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो तंग होती है मेहनत कशों की ही रोजी। ये खाली लौटें तो खूब इनके बच्चे रोते हैं, बिलक के भी न मिले कुछ तो भूखे सोते हैं। ये सोचिए कि जो है सारे काम धंधे बंद, तो भूख से ही न मर जाएं ऐसे हाजतमंद। सखी हैं आप, सखावत की आज हद कीजिए, और ऐसे लोगों की दिल खोल कर मदद कीजिए। अगर न उम्रा हज आप कर सके इस साल, गरीब को उन्हीं पैसों से दीजिए रोटी दाल। खुदा के बंदों की खिदमत में असल राहत है, कि कायनात की अफजल तरीन इबादत है।
آپ کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کریں یا برطرف کر دیں، لیکن اس کے لیے ہجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، لہذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے۔